अभी रिसेंटली कुछ पिछले महीने ही कुछ कॉमेडियंस का मैं जाना नहीं चाहूँगा उस चीज़ में हुआ, बट एवरीबडी केम, हो गया ना अगेंस्ट सारे का सारा। Whatever people are trying to chase on social media, I feel. आप लोग की लड़ाई हुई है कभी? पर लड़के आ जाते थे मारने के लिए, उनकी गर्लफ्रेंड्स को पसंद आए थे भाई हम। नील नितिन मुकेश #mentor #handsome। आपके हिसाब से आज की जनरेशन के लिए डिजिटल फास्टिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? We all should do digital fasting. Yeah. We all should connect more with ourselves, more with our family and with our friends, because that is the real happiness. सुबेद को बिग बॉस ओटीटी में देखना चाहते हैं हम। Hello guys, this is Tanu Awasthi and you're watching me on Filmy Gyan. And today I'm in conversation with the talented cast of Hai Junoon. I would like to welcome the handsome hunks Priyank, Siddharth and Sumedh on Filmy Gyan. कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया, thank you so much. सबसे पहले तो I would like to take a moment to appreciate टीजर देखने के बाद तो बड़ा मजा आया and I'm very excited इस शो के लिए. But how is the feeling for you guys? आप लोगों को कैसा लग रहा है? We all have this reaction only. Finally, finally it is happening. Finally, इस शो में हम जैकलीन और नील नितिन मुकेश को भी देख सकते हैं, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था कि आप तीनों भी साथ में काम कर रहे हो प्लस जैकलीन और नील नितिन मुकेश भी हैं आपके साथ? I think it was beautiful and और भी कई सारे लोग हैं और सभी के सभी ने एक बहुत अलग फ्लेवर ऐड करते हैं, which is I think so the most special part about this show. The characters are very different, the actors are very different. No two people are same on screen, off screen, and I think so everyone had this good energy that they got on sets. Yes, everyone. I was just true. Thinking कि सब लोग तो थे ना, हाँ सब लोग हैं, सब लोग बहुत अच्छे इंटेंट के साथ आते थे. And I think it has been wonderful. I think so. Neil bhai is like our elder brother. He's helped us, support us. He made us comfortable because of course working with him, we felt कि अरे इतना experience है, हम काम करेंगे. You just hope for a smooth experience, and he gave us like great experience to work with him. Jackie is the sweetest person like I've met, to be very honest. मतलब she doesn't have like that कि मैं कुछ हूँ या ऐसा. She is very humble, very chill, simplicity है उनमें. वो चीज़ तो बहुत अच्छा लगा. She made us comfortable. Like I remember first scene with her, मैं थोड़ा फंबल कर रहा था क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्शियस हो गया था. I want to give my best always. और कभी कभी क्या होता है ना कि आपको थोड़ा ऐसा होता है कि आप बहुत एक्साइटेड होते हो, फिर आप थोड़ा वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं आपसे तक. बट उन्होंने मुझे बोला कि it's okay, you take your time. So it was amazing, and I think the people should watch this show because they will get a lot of variety in this show, and they will relate to at least one of the characters, and like not just relate, they will connect to it. I think so that's something which this show has, which is very beautiful. Working with Neil sir and Jacqueline ma'am, definitely it's a big and a favorite moment for me because I have done a show, a reality show with Jacqueline ma'am where I was a contestant, you know, small little kid watching Jacqueline ma'am with all that sparkly, you know, eyes, and today I'm working, you know, today I got this opportunity to work with her, and as a person, Jacqueline ma'am always bring a lot of positivity on set, and she is the sweetest. Like when you will talk to her, she gives you that kind of, you know, respect, attention, and she is very sweet, like we all know that. And when I talk about Neil sir is like a mentor, not only for me but for everyone on set. You know, he used to come on set, he used to, you know, help all of us with anything. So after every scene, what I used to do, I used to go and sit with him, and वो मुझे बहुत अच्छी बातें बताते थे because he has a lot of experience in this industry. So I was doing one scene, and उस scene में I was not content with my shot. So I was like कि इसमें क्या, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि इसमें कुछ तो कमी है, बट वो कमी क्या है, उसको मैं सुधारूं कैसे. तो नील सर बहुत ही, you know, बहुत ही beautiful gesture के साथ, he came to me and like, listen, do this, and you're doing great. You just have to do this. Your expression जो तुम दे रहे हो उसको थोड़ा सा डाउन कर दो या ये कर दो, ऐसा उन्होंने मुझे बोला. एंड जेन्युइनली उसके बाद मैंने वो शॉट दिया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी. सो दैट्स हाउ everyone on set was like, very supportive, very calm, and
जितनी भी हमारी कास्ट है जुनून की, दे ऑल आर वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी टैलेंटेड पीपल। मतलब सबके साथ काम करके अगर डे कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे हम थके होते थे कि यार कल रिहर्सल है, फिर शूट है, फिर अभी ये वाला सीन है, अभी वो सीन है, फिर रिहर्सल से, बट एवरी टाइम वी यूज्ड टू कम ऑन सेट सीइंग एवरीबॉडीज एनर्जी, वी यूज्ड टू फील वाओ, वो जुनून बना रहता था थ्रू आउट द शूट। What about you? Me working with Neil, Jackie, and Sumedh, Sid, and the rest of the people we don't have today, unfortunately, it was an amazing experience. I mean, इन दोनों ने काफ़ी बातें बोल दी हैं, but मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा इस चीज़ में that it was a great exchange with all of them. I have actually got to learn so much because there were so many artists on the set. I am a guy who's very selfish when it comes to learning. I become very selfish and I'm very honest about this also. कि जब मुझे जहाँ ग्रोथ और लर्निंग दिखती है मैं सेल्फिश हो जाता हूँ। मुझे एक दिखता है कि अच्छा नहीं मुझे ग्रो करना है, मुझे लर्न करना है। सो फॉर मी दैट वन एंटायर ईयर ऑफ मीटिंग दीज गाइज, हैविंग रिहर्सल्स विद देम, डूइंग एक्टिंग सीन्स विद यू नो नील, जैकी, सुमेध, यू नो सिद ऑल्सो, वी हैव डन एक्सचेंज सम सीन्स टुगेदर। इट वाज अ ग्रेट लर्निंग। मैं कुछ ना कुछ लेके, हम ना आर्टिस्ट एक्चुअली चोर होते हैं, मैं आपको सच बताऊँ तो। हम कहीं ना कहीं से ना कुछ चुराते रहते हैं, छोटी छोटी चीजें, कुछ भी हो सकती है। आपसे भी, जैसे आप बैठे हैं अभी, आप बात कर रहे हैं, आप कितनी खूबसूरत हंसी है, तो जैसे आपने अभी थैंक यू बोला और आंखें खूबसूरती से इतनी बंद करी, अब ये चीज मैं हो सकता है अपने कोई नेक्स्ट शो में किसी को धन्यवाद बोलूं, इतने प्यार से हंसूं जैसे आप हंस रही हैं तनु, और वैसे ही थैंक यू बोलूं जैसे जिस इनोसेंस के साथ आप ये दे रही हैं। सो आई थिंक हम ये छोटी छोटी ना लाइफ से ही पिक करते रहते हैं, और मैंने बहुत चीजें पिक करी इन सबसे, तो वो मैंने रख ली हैं, अब आगे जाके सबको दिखाऊंगा। चोरी कर ली है, मैं चोर हूँ मैं। मैंने सुना है कि नील सर बहुत शाय और इंट्रोवर्ट है, क्या ये सच है? नहीं, मतलब सही लोगों के साथ तो खुल जाते हैं, मतलब हमारे साथ तो बहुत अच्छे से थे। अरे बहुत मस्ती है। हम सब वैसे बहुत शाय और इंट्रोवर्ट हैं, इट्स जस्ट दैट कि हम खुलते उन्हीं के साथ हैं जो डिजर्व करते हैं, और फिर खुलते हैं तो फिर ऐसा खुलते हैं कि उन्हें कंट्रोल। बहुत बहुत अच्छे, बढ़िया। क्या मतलब उनके कभी घर जाइए आप, क्या हॉस्पिटैलिटी और क्या खाना बनता है उनके घर पे। भाई साहब, हमने तो शुरू किया उस दिन, हम गए उनके घर पे गणपति के बाद ना, जैसे दर्शन के बाद, और बाहर बालकनी है, बालकनी में पानी पूरी लगी थी। तो हम गए पानी पूरी खाने, और हमें लगा पानी पूरी हम खाए, अब रुक ही नहीं पा रहे। पूरे जो हमारी गोड्स की पूरी है, जुनून की पूरी कास्ट खड़ी है, सब मांग रहे हैं ऐसा प्लेट आके इसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, जिसके प्लेट में जा रहे हैं उसके बाजू वाला बंदा उसको गुस्से में भी देख रहा है बकायदा, इतना सबको। सब खाने के बाद फिर अंदर आए, तब तक हमें पता नहीं था अंदर क्या हो रहा है। अंदर अलग बुफे लगा हुआ है लंबा, और क्या क्या अलग चीज़ें, मतलब बाप रे, इतना खाया। एंड क्या हॉस्पिटैलिटी उनके घर में, बहुत अच्छा लगा, मतलब मज़ा है। Very sweet family, very warm. Yeah. He's actually very warm. Like I remember, obviously he was Neil Nitin Mukesh. He is Neil Nitin Mukesh. Scene जब हम initially मिले भी थे तो लगता था एक, you know, there's an ice always. So I was like, how to break this ice now? मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी because he just makes everybody feel so comfortable around him. Yeah. You know, he himself initiates the conversation. And I'm like, oh, you're talking to me. You even know me. Am I important for you? Know, because when I saw New York, I was in my school back then, and it's a beautiful film, and I have loved that film and the songs of New York so much. That entire trio of John, Neil, and Katrina was something beautiful. The story was kick-ass. ऐसी films नहीं बनती जबकि आज की डेट में, मुझे ऐसा लगता है कम films बनती हैं अभी। तो उसी टाइम से इतना ऐसा था कि अब देखते हैं उनके साथ जब सीन किया, तो मैं देख रहा हूँ यार वो तो कॉन्वर्सेशन खुद ही से इनिशिएट कर रहे हैं। यू नो, एक होता है कि आप बैठे रहते हो अपने में। सो ही इज, आई नेवर फेल्ट दैट ही इज एक्चुअली क्वाइट एन इंट्रोवर्ट, नो, बिकॉज व्हाट आई सॉ विद नील दैट ही वाज द वन एक्चुअली, जबकि मुझे होना चाहिए, आई वाज फीलिंग वेरी ऑकवर्ड कि कैसे जाऊँ, क्वेश्चंस आए, हो जाता है ना, रुक जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, ऑकवर्ड हो जाता है कभी। उन्होंने वो आईसी खुद ही ब्रेक कर दी, तो वहीं सब बहुत ईजी हो गया था। आई मीन यस, आई थिंक सबके साथ ही बहुत फ्रैंक था। अच्छा, अगर बात करें शो के बारे में, तो शो की जो स्टोरी लाइन है काफ़ी कॉलेज सेटिंग वाली दिखाई गई है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्या आप लोगों के कॉलेज लाइफ में कोई ऐसी फन स्टोरी थी जो कि आपको अभी तक याद हो, जो आप लोगों ने कॉलेज में की हो, मस्ती मजाक, जो आज तक आप लोगों के साथ है?
सो पता नहीं कितने हाँ, ऐसे बहुत टाइम हो गया है, बहुत अचानक से रिकलेक्ट करना इज अ टास्क, बट इतना पता है कि हम लोग ना, जैसे मैं हॉस्टल में रहता था और स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से था, तो हमारे यहाँ ऐसे हाउस कंपटीशन होते हैं ना, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस, तो ग्रीन हाउस में मैं था। तो अब डांस हमें बस डांस उस वक्त इतना आता नहीं था, बस एक ही चीज़ आती थी, फ्लिप करना, एक इधर से इधर से इधर से फ्लिप। तो एक डांस था कि जय हो ना 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 ना, तो वो गाना कहीं पे भी, मतलब प्रयागराज के किसी भी कोने में फंक्शन हो रहा है, हम बस वही करते थे। और मेरा एक दोस्त है, वो बहुत ही अच्छा गिटार बजाता है और बहुत ही अच्छा सिंगर है, लेकिन वो बहुत शाई है, तो वो ना कभी अपना टैलेंट कभी दिखाता नहीं था लोगों को। और एक दिन वो ऐसे ही बस आराम से बैठ के गिटार प्ले कर रहा था और मैंने उसको देखा, मैंने बोला भाई ये तुम्हें इतना गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, इसको थोड़ा सामने लेके आओ ना। तो हम लोग ऐसा ग्रुप बना के कि ही विल डू द ही विल प्ले गिटार एंड ही विल सिंग, आई विल डू माई थिंग, ऐसा करके हमने एक अच्छा खासा एक्ट रेडी किया और वो परफॉर्म किया। एंड देन कट टू बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं ना, सारी चीज़ों को मिला के एंड देन वो विनर डिसाइड होता है। तो ऐसे जुगाड़ कर करके हमने अपना सारा कंपटीशन हम खेल रहे थे। एंड देन देयर वाज दिस साइंस कंपटीशन वेयर यू हैव टू मेक समथिंग इनोवेटिव। तो ये बहुत फनी स्टोरी है ये कि सब ना ऐसे कोई वॉल्केनो इरप्शन बना रहा है, कोई क्लैप बजाओ तो लाइट जल रही है, और मैं और मेरे साथ जो थे हम लोग थे कि अरे यार हम बनाए क्या, इतने तो है नहीं, इतनी टैलेंटेड तो है नहीं, या इतनी हमने पढ़ाई साइंस में तो की नहीं, और जिम्नास्ट थे, सुबह उठते थे, प्रैक्टिस करते थे, और पढ़ाई से उतना रिलेशन अच्छा नहीं था हमारा। तो हमने कहा बनाना क्या है, तो हमने बोला चलो लेट्स मेक अ फायर अलार्म, बिग थिंग। मतलब इसमें क्या है, अलार्म खरीदेंगे और वायर से कनेक्ट कर देंगे, आग लगेगी, अलार्म बजेगा। मैंने कहा हाँ बना देते हैं, नंबर ही तो चाहिए, क्या ही करना है। और ना हमारे पास ना कार्डबोर्ड था ना प्रॉपर थर्माकोल थे कि हम इसमें बनाए, तो मैं छोटा सा कार्डबोर्ड लेके 3-4 बिल्डिंग बना दी और एक में अलार्म रख दिया, और वायर बहुत बड़ी थी, तो हमने वायर को छुपाने के लिए ऐसे 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 कुछ करके कनेक्ट कर दिया, मतलब पूरा बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग से कनेक्ट करके हमने अलार्म में कनेक्ट कर दिया। और फिर अब ना मैं ऐसे खड़ा हूँ और जो हमारे जो चेयरमैन थे वो आ रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो कोई ताली बजा रहा है तो लाइट जल रही है, हाँ वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, ये हो रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। और बोले सिद्धार्थ बताओ क्या बनाया है। मैंने कहा सर दिस इज अ मॉडर्न अलार्म। मतलब सर जब आग लगती है घर में तो हम सब पैनिक हो जाते हैं। बोला हाँ, हम भूल जाते हैं कि हमें कॉल करना है या फिर सेफ्टी के पास जाना है या फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, हम भूल जाते हैं बिकॉज हम पैनिक हो जाते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो मैंने उनको चिपका दिया। ये जो टेक्नोलॉजी है सर, आग लगेगी अपने आप, बिल्डिंग में जो वायर कनेक्ट देख रहे हैं ना, ये कनेक्टेड है, अपने आप उसको सेंस होगा और वो अपने आप कॉल लगा देगी फायर ब्रिगेड में, और अपने आप फायर ब्रिगेड आके आग बुझा देंगे। आपको पैनिक और आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द न्यू टेक्नोलॉजी विच मैंने सोचा कि यह होना चाहिए। और मेरा ना, आप समझो ना, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रखे हैं आज, और मेरा छोटा सा कार्डबोर्ड के ऊपर 2 बिल्डिंग है और एक फायर अलार्म है, और यहाँ से मैं आग लगा रहा हूँ लाइटर से, और वो भी एल्युमिनियम फाइल ना, वो जल नहीं रही थी, तो उसको मैं ऊपर टुक टुक कर रहा हूँ तो वो जाके कनेक्ट हो रहा है। और वो इतने इम्प्रेस्ड हो गए, फिर जाके सीधा इतने ज़्यादा ही वाज सो इम्प्रेस्ड विद माय प्रोजेक्ट। वो जाके मेन प्रिंसिपल को लेके आए, टीचर्स को लेके आए, सबको दिखाया। और जो मेरे क्लास का मॉनिटर था वो ऐसा था कि क्या है ये, मैंने वॉल्केनो बनाया है मैंने ये बनाया है। और जब प्राइजिंग की बारी आई तो द 3rd प्राइज गोज टू, मुझे लगा हमें तो मिलना ही नहीं है, एक को गया, नहीं एक को गया। मैंने कहा 3rd नहीं आया तो क्या ही आएगा, 2nd दूसरे हो गया, 1st सिद्धार्थ ने कहा, मैंने कहा आई एम द साइंटिस्ट नाउ। बड़ा मजा आया। पर ऐसे छोटे छोटे, मतलब मैंने भी बहुत वैसे कांड किए हैं, स्कूल में किए हैं, कॉलेज में। लड़ाई हुई है कभी? अरे लड़ाई करने आते थे, हाँ मतलब आते थे। लड़ाई हुई नहीं हुई है, पर लड़के आ जाते थे मारने के लिए, उनकी गर्लफ्रेंड्स को पसंद आए थे भाई हम लड़कों की। बोलते बोलते भी गुस्सा हो रहे थे, अभी भी गुस्सा हो रहे। तो कौन है इधर, है क्या कोई उसमें से? ऐसा मुझे लगा अभी गर्लफ्रेंड्स को हम पसंद आ जाते थे, थोड़े अच्छे दिखते थे उस टाइम। लड़कों में लड़ाई हो ही जाती है, हाँ आप कितना भी अवॉइड करो, फिर उस चक्कर में
कि अच्छा तू मेरे होते थे, girlfriend बहुत होते थे से मेरे बात झगड़े किया होते। उनकी, जबकि खुद गर्लफ्रेंड आ रही है हमसे बात करने के लिए, पर मारने आते थे कि तू है अच्छा, तेरी शक्ल तो अच्छी लग रही है, नहीं बिगाड़ेंगे चल, तो बच जाते थे। इसलिए 4 लड़के आते थे, हमारा शक्ल अलग देख था, के बच शक्ल अच्छी और बिगाड़ते हैं। हमारे यहाँ पे अलग, हमारा बहुत है, हमारा अलग है, शक्ल अच्छी और मारते हैं इसको। सिद्धार्थ, अभी तो आप बाबा रामदेव से भी मिल के आए जी और हाँ। आपने डिजिटल फास्टिंग भी जी एक्सपीरियंस हाँ, की। जी हाँ। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस, आपके हिसाब से आज की जनरेशन के लिए डिजिटल फास्टिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल सारे इम्पोर्टेंट के है, सारे लोग फोन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब जेन्युइनली जब मैं वहाँ गया था और डेफिनेटली मैं वो शूट कर रहा था, बट वो शूट करते करते भी ना मैं उस चीज़ को फील कर पा रहा था कि सुबह 7 बजे उठ के जब बाबा रामदेव जब वो एकदम सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करने जाते हैं, तो हमारी शूट भी उसी तरह अलाइन थी। लिटरली मैं भी 6 बजे उठ के रनिंग करने गया, मेडिटेट किया, सूर्य नमस्कार किया। वो सब करते हुए ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था यार दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज। द जनरेशन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट हियर on phone, the world is just put your phone aside, see the world, then only you will be able to understand what the universe is trying to tell you, what your own self is trying to tell you. Because आज के टाइम पे जितने भी यंगस्टर्स हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी हैं, कहीं ना कहीं दे वांट एवरीथिंग क्विकली, कि रातों रात मैं फेमस हो जाऊँ, रातों रात सारी चीज़ें हो जाएं, एंड वी ऑल आर चेजिंग ड्रीम्स. Okay, so in this show also we are showing that only. This show is only celebrating the courage to dare, dream, dominate. And my character in the show, Bikram, he is just like us, coming from a small town, entering to this big world, trying to fit in and trying to find his own space, trying to find his own voice. So this character only, I feel a lot of young people will relate and see themselves in Bikram's story, because I do see myself. I'm like, my journey is somewhere very similar to Bikram's journey, coming from a small town, trying to fit in, trying to do something, trying to find my own space here in this big industry. So I feel we all should do digital fasting. We all should connect more with ourselves, more with our family and with our friends, because that is the real happiness. Yes, man. और बाबा रामदेव योगा एक्सरसाइज के लिए तो जाने जाते ही हैं, बट you won't believe मैं ना पहले मेडिटेशन नहीं करता था. I started doing meditation. Oh. Yeah, I know it might sound कि ऐसा क्या है, but meditation हाँ ऐसा क्या कर रहे मतलब but it is very important. Just wake up in the morning, just do 10 to 15 minutes of grounding or meditation. That's it. क्योंकि वहाँ पे आप कनेक्ट होते हो खुद से. अब मैं मतलब इस तरह नहीं साउंड करना चाहता हूँ कि आप कनेक्ट होते हो, ये हो जाता है, वो हो जाता है, but it is important. You have to know yourself spiritually, emotionally and mentally. Yes. और I want to say about something about digital fasting. Since we are talking about this, I really think generation has lost it. खो गए अपने आप, खो दिया है लोगों ने अपने आप को. It is very sad. I mean, yes, it is doing great by giving employment to people. उनके घर चल रहे हैं, मेरा भी चल रहा है, मैंने बहुत campaigns करे हैं, brands करे हैं लाइफ में. But it is extremely important in today's date to know that when to separate yourself from that world, because I just want to tell people that it's a made up world. It is not even real. What are you chasing? For who are you chasing? Want to get some validation from, let's say, 10 lakh people about what that you look good, which you already know. Isn't your mother and father enough, your loved one enough to tell you how pretty you are? Do you want to still seek validation from hundreds and thousands of people who doesn't even care? कल को कुछ गलत कर दोगे. अभी रिसेंटली कुछ पिछले महीने ही कुछ कॉमेडियंस का, मैं जाना नहीं चाहूँगा उस चीज़ में, हुआ, बट एवरीबडी केम, हो गया ना अगेंस्ट सारा का सारा उनके चीज़ों के अगेंस्ट. तो whatever people are trying to chase on social media, I feel it is first of all not even real. I have been there, I have come out of it. I have understood life is about being out there, not in there. So just please ठीक करो. मैं बस फ्यूचर जनरेशन को, अपकमिंग जनरेशन को ये ज़रूर बताना चाहूँगा, कुछ नहीं रखा है बॉस. ये एक तो सच्ची नहीं है, पहली बात तो भूल जाओ ये सच है, ये सच्ची नहीं है, क्योंकि जो लोग सच्चे हैं उनको तो दबा दिया जाता है. मैं ये भी बता दूंगा इस दुनिया में. ये बहुत सैड, बहुत सिंपल वर्ड में बताता हूँ मैं, बहुत ही सिंपल वर्ड में बताता हूँ. हम बोलते हैं ना कि मेरे मम्मी पापा मुझे कंट्रोल नहीं करते हैं,
बट समवेयर वो मम्मी पापा आपको गाइड करते हैं. You are letting social media control you. Don't let that happen. That's it. Yeah, people are not happy in their relationships. I mean, I have also faced these problems. I mean, कोई भी किसी भी एक तो 10,000 ऑप्शन सबके पास आ गए हैं आज की डेट में. You know, that is something which is again a problem. Everybody has an access. हाँ जाओ, ठीक है, आप इस लड़की के साथ हो, आप उस लड़के के साथ हो, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, वहाँ पे आपके पास 10,000 लड़के लड़कियाँ सामने और आ जाएंगे. You know, so कहाँ आप उनको देखने में लग जाओगे फिर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कहाँ डिस्ट्रैक्ट होगे, क्यों, मतलब रहो ना उस चीज़ के साथ. मतलब आई नो आई एम टॉकिंग लाइक एन ओल्डी राइट नाउ, बट लेक्चर ज्ञान चालू हो गया मेरा. मैंने भी खुद रहा हूँ उधर. मैं 2013 से इंस्टाग्राम पे हूँ. 12 साल हो गए मुझे इंस्टाग्राम पे. तो मतलब इतना ज़रूर पता है कि अब होलिया है. That is and it is very important to explore yourself. Yeah, man, because it's rare now. Yeah. Just tell. I meet so many less people now who are not there on Instagram, and they are my favorite people. इसके ऊपर Because they just see इसके life ऊपर बहुत beyond. भयंकर मीम्स बने हैं. किस चीज़ पे? इस चीज़ के ऊपर कि यू नो मतलब ऐसा मीम है ऐसा कि एक ना किसी के क्रिमेशन में और वो बोले ए भाई ये रील देख, बोले ए पागल क्या कर रहा है, हाँ, ये कहाँ पे This कहाँ is कर the रहा है. reality actually. बिकॉज आप इतना इंग्रॉस हो जाते हो, खो जाते हो, एक बार फोन उठाते हो, हाँ. धोखे से आपने इंस्टा ओपन किया, 2 घंटा गायब. हाँ, मतलब हाँ सच में यार, उन्होंने एल्गोरिदम इतनी स्मार्टली बना दी है. सो गाइस प्लीज डोंट फॉल फॉर दिस. इट इज अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड. इट इज नॉट इवन रियल. एटलीस्ट बी बिहाइंड समथिंग which actually exists. ये एग्जिस्ट करता है बट एक पैरेलल डायमेंशन में जो असली नहीं है. और साइंस फिजिक्स नहीं झाड़ूंगा, बट समझो ये सच नहीं है. बट आजकल इंडियंस किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्टेड हैं, जो कि है IPL. IPL. आप लोग किस IPL टीम को सपोर्ट कर रहे हो? आप लोग फॉलो करते हो IPL? हम तो देखते हैं. कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो आप लोग? नहीं, ऐसा कोई इन जनरल नहीं है. लाइक आई डू लाइक अ लॉट ऑफ टीम्स. लाइक आई लाइक मुंबई इंडियंस, आई लाइक RCB, आई लाइक चेन्नई सुपर किंग्स, आई ऑल्सो लाइक गुजरात टाइटंस. तो ये क्योंकि इन्होंने जैसे टाइम के साथ जो टीम्स खेलती है ना, मैं किसी एक सेपरेट टीम का नहीं कर पाता हूँ. मतलब मुझे लगता है जो अच्छा खेल रहे हैं मैं अपने आप उसका फ़ैन हो जाता हूँ. हाँ, मतलब मैं इंडिविजुअल पर्सनालिटीज का फैन But ज़्यादा you हो know, जाता हूँ. this लाइक actually- MS धोनी सर को खेलते हुए देखने में अच्छा लगता है. I still feel that you know this question that you asked is like, of course we answered, but this is gonna go on social media too. That's true. That's true. Our way of also like because it's still stuck in my mind. Yes, yes, yes. I think yes. it's just a very I'm very glad. powerful tool which needs to be utilized in the right manner. वरना गलत है. Like you know sometimes like मैं अगर कुछ अचीव करूँ और मैं देखूँ किसी और ने ऑलरेडी वो अचीव कर लिया है या उसी टाइम पे वो कहीं और है और अच्छा कुछ चीज़ कर रहा है, मेरा दिन खराब जा रहा है, मैं उसी टाइम पे उसका फोटो देख लूँगा. हाँ यार. तो मुझे लगता है मेरी लाइफ कितनी खराब है. देखो वो तो देखो क्या मजे कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा कुछ नहीं कर रहा हूँ. जब मैं कर रहा होता हूँ तब शायद उस इंसान को वही लग रहा हो. अभी क्या होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर फॉर एग्जांपल किसी को भी जाके कुछ भी बोलना है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है कोई, मुझे चलो उसको जाके कोई चीज़ बोलनी है तो मैं नहीं बोल सकता. बट सोशल मीडिया पे मैं उसको मैसेज कर सकता हूँ, मैं उसके कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकता हूँ और वो पढ़ सकता है. और मुझे 10 years before you had to be something in order for your words to reach them. Yeah. Now that's not the No, case. that's not the case. Now anyone with whatsoever IQ they have, whatsoever level of understanding they have, and whatever they think, like वो बैठ के कुछ भी सोच सकते हैं. भाई मुझे तो लगता है प्रियांक काला है, मैं प्रियांक के प्रियांक तो काला है, तो क्या मतलब बना, वो हम नहीं कंट्रोल कर सकते. और वो कभी कभी हम इतने वल्नरेबल होते हैं ना जब हमारे आसपास लाइफ नहीं होती, हमारे आसपास लोग नहीं होते और हम सोशल मीडिया पे लाइव ढूंढते हैं. हाँ यार, ये तब बहुत लगती है प्यारी बात. बात बोली तूने, पता है? तब लगती है ये बात. बहुत सच भी है सुमेध, पता तो है? मुझे लगता है यूज तो होना चाहिए बट एकदम सही तरीके से होना चाहिए. अगर ना ही हो, देखो क्या होगा, अगर नहीं करो ना, मैं भी ऐसा था कि भाई नहीं करते यूज, बट ना करो ना तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर आज का रोजगार टिका हुआ है. हाँ यार. बड़ी बड़ी न्यूज आजकल न्यूज़पेपर से पहले आपको सोशल मीडिया पे दिख जाती है. तो इट्स ऑल्सो वेरी क्रूशियल दैट वे. It is one of the very important tools, but if used right, but वो कम हो रहा है. वो let's say few people are only using their social medias for the right things. To be very honest, मैं भी social media पे हूँ. मैं अब like today if I talk about something out of Hai Junoon, I am finding a purpose in life right now. I'm at that phase in my life where I'm finding a purpose in my life.
I'm still, I don't know yet what is the purpose in my life, and I know soon when I will find the purpose in my life, I will use my social media accordingly to fulfill that purpose and to, you know, lead in the world with something else as well, since we have got so much influence, and it's also a soft power, right? This influence that we got. So instead of, at least I know it, I'm working towards it, but yes, I feel वो कम हो रही हैं ये चीजें जो बोल रहे हैं ना यार, एक कम वो सही लोग हैं यार जो यूज कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, मतलब कई सारे लोग भी, मतलब जितना हमें प्यार भी मिलता है हमारे शो को, टीजर को भी जो प्यार मिला है सोशल मीडिया के थ्रू मिला, तो वो बस एक है ना कि शायद कोई सोशल मीडिया के साथ ये भी करे कि इसको सही तरीके से सिखाने के तरीके भी यूज करा दे कि भाई वही है कि किसी भी चीज और बुरी साइड भी है, अति किसी भी चीज की नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली। एनीथिंग व्हिच यू आर डूइंग एक्स्ट्रा ओवर इज रॉन्ग, over smartness wrong, over confidence wrong, over usage of Instagram wrong. So use it, balance करो चीजों को and then live your life nicely. Okay, so काफी सारी सीरियस बातें हो गई, लेकिन अब हम टाइम पास करते हैं, अब सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। चलो सोच दी हैशटैग शो, थैंक यू। ओके, तो मैं कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लूंगी और आप लोगों को बस हैशटैग देना है फटफट। नील, नितिन, मुकेश। हैशटैग मेंटोर, एक एक करके। हैशटैग हैंडसम, मैं तो मेंटोर बोलूंगा, विक्रम। ओके। हैशटैग यंग बॉय, जैकलीन। हैशटैग सिंप्लिसिटी, ब्यूटीफुल। हैशटैग हॉट, सलमान। भाईजान, भाईजान। हैशटैग टाइगर, भाईजान, हैशटैग भाईजान। शाहरुख खान। हैशटैग किंग, बादशाह। हैशटैग बादशाह यार। आमिर खान। परफेक्शनिस्ट, हैशटैग परफेक्शनिस्ट। मैंने बोल दिया भाई, आप लोग बोलो। अरे मैं वही आता है सबसे पहले, आई थिंक सो, मैंने पहले बोल दिया। हैशटैग टैलेंट। यार मुझे हैशटैग वैसे आमिर खान का वो जो उन्होंने वो किया था ना, मतलब वो तो है खैर, describes वो फिल्म रंग दे बसंती में उनका कैरेक्टर का नाम क्या होता है? डीजे, हैशटैग डीजे। आई लव दैट कैरेक्टर ऑफ हिज, दैट व्हाट ही इज कैरिंग। ओके। हैशटैग अ वेरी गुड टैलेंट फाइंडर, यू कैन से, मतलब बहुत अच्छे टैलेंट्स को ढूंढते हैं। मुझे भी उन्होंने ढूंढा। मुझे भी प्रयागराज से उन्होंने उठाकर धूमत्री दी थी। ठीक है, सो बिफोर वी एंड वी हैव द लास्ट सेगमेंट विच इज़ दी व्हाट द कमेंट। तो हमने आपके पोस्ट से कुछ कमेंट्स फिल्टर आउट किए जो कि आपके फैंस और सब ने किया, आपको बस रिएक्ट करना है। ओके, सो द फर्स्ट कमेंट इज, सुबीत को बिग बॉस ओटीटी में देखना चाहते हैं हम। That sums it up. योर रिएक्शन? My reaction is शॉकिंग रिएक्शन। क्यों? क्यों देखना?